हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, the three orders. That's important chapter, class 11th history here. The next question arrive here. How do the changing nature of population affect the economic and society in the Europe? You know that is an important question. How did the changing nature of population affect the economic and societies in the Europe? That's an important question here. A long-term change in the population level affecting their economy and societies in their following way. You know that's important. Long-term change in the populations is effect here. There is a many way here. First of all here, a number of towns come into begin. There is a number of towns come begin here, and they also become the center of trade and commerce. Society become a more advanced and civilized here. That's important. Society become more advanced and civilized here. This change brought about the new changes in agricultural production, and production reached its peak. Good quality, good were produced, which increasing the life expectancy rate here. There is a good quality, good were produced, which increasing the life expectancy rate here. The next year, depopulation resulting in a major shortage of labor. You know that is a mistake word here. There is a major shortage of labor here, and serious imbalance were created between to agriculture and manufacture, because were not enough people to engage in a both equal prices of the agriculture goods and drop it as there were here people to buy. That's important here. Depopulation resulting in a major shortage of labor, and wage rate are increasing because the demand of labor, a particular agriculture labor, rose in England by much as a 20-50% in aftermath of a Black Death. Aftermath of there's a aftermath of the Black Death. You know that there is a mistake here. There is a month, not a math. After the month of the Black Death here, the human spawn, there is a verb, is fabric, and children work in the Lord as a wine presses here. And the manor could not be completely self-sufficient because salt, millstone, and metal were had to be obtained from outside. That's important here. The manor could not be a completely self-sufficient because salt, a milestone, and the metal were had to be obtained from outside. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला क्वेश्चन, जो कि क्लास 11वीं इतिहास का है,
चैप्टर 3 वर्ग, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूरोप में जनसंख्या की बदलती प्राकृतिक ने अर्थव्यवस्था और समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। यूरोप में जनसंख्या की बदलती प्राकृतिक ने और अर्थव्यवस्था और समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए जनसंख्या काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जरिया होता है। जनसंख्या से दर में जो है दीर्घकालीन परिवर्तन ने अर्थव्यवस्था और समाज को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित किया, तो ये प्रभावना काफ़ी महत्वपूर्ण थी और जो प्रभावित भी जनसंख्या ने किया। पहली बात तो यही आता है कई शहर अस्तित्व में आ गए, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि होने से कई शहर जो है अस्तित्व में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी बनाए गए हैं और समाज अधिक उन्नत एवं सभ्य भी हो गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज अधिक उन्नत एवं सभ्य भी हो जाता है। और इस परिवर्तन से कृषि उत्पादन में नए परिवर्तन भी देखने को मिले, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो कृषि में उत्पादन में नए परिवर्तन भी देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। उत्पादन अपने चरम पर पहुंच गया और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन किया गया, जिससे जीवन प्रत्याशा दर में काफ़ी वृद्धि होने लग गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। जनसंख्या हर्ष के परिणाम स्वरूप श्रम की भारी कमी हो गई और कृषि और विनिमय के बीच गंभीर असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि दोनों में सामान्य रूप से संलग्न होने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। कृषि वस्तुओं की कीमतें गिर गई क्योंकि खरीदने के लिए कम लोग थे। कृषि वस्तुएं कीमत गिर गई क्योंकि खरीदने के लिए बहुत ही कम लोग थे। मजदूरी दरों में वृद्धि हुई क्योंकि ब्लैक डेथ के बाद इंग्लैंड में श्रम विशेष के रूप में कृषि श्रम की मांग जो है 250% बढ़ गई। जर्नल सी बात है, जो यहाँ पर प्लेग फैली यानी ब्लैक डेथ हुई, जिसके कारण श्रमिकों की संख्या कम गई। और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में जो है श्रमिकों की संख्या घटी। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कृषि बटन की जो है मांग 25% बढ़ने के कारण ये भी रहा, क्योंकि इंग्लैंड में जो है ब्लैक डेथ काफ़ी हुई। महिलाएं कपड़ा बुनती थी और कपड़े बुनती थी और बच्चे जो है वाइन प्रेस में काम करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं कपड़ा बुना करती थी और बच्चे जो है भगवान की वाइन प्रेस में काम करते थे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर कहते हैं जागीर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सके। देखा जाए तो जागीर पूरी तरह से जागीरदार जो थे पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए, क्योंकि उनमें नमक, चक्की और धातु के बर्तन बाहर से प्राप्त करने पड़ते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है एग्जाम व्यू से, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व भी रखता है। ज़रूरी बात जो ज़रूरी है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो पॉइंटों को नोट कीजिए। और पॉइंट को नोट कीजिए तो तब जब आपको वीडियो प्राप्त होगा। वीडियो तब प्राप्त होती है जब चैनल को सब्सक्राइब रहता है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी भलाई होगा, क्योंकि यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।